So alright guys, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Sharma and today we are going to solve the DPP or the last 15 years question paper of mineral nutrition chapter. Very important chapter from examination point of view, very easy because most of the questions are directly going to be from NCERT itself and some of the questions will be from out of NCERT. I'll surely let you know about those questions. So let's proceed and let's solve all the questions of this chapter. सो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मैं अनअकैडमी पर एक फ्री क्रैश कोर्स चला रहा हूँ नीट 2020 के स्टूडेंट्स के लिए। रोज मैं दिन के 5 से 6 घंटे वहां पर पढ़ाता हूँ। अगर आप वहां पर आके लाइव पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज टोटली योर कॉल। आपको सिर्फ टेलीग्राम ज्वाइन करना है और जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उन पर आपको क्लिक करना है, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे सेकंड चैनल को जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओजोन क्लासेस 2.0 नाम से आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। And if you are on Instagram, then you can follow me up on Vipin Sharma Biology, which is my official Instagram handle. Now let's solve these questions. Okay. Which is essential for the growth of root tip? So for the growth of root tip, what is essential? There is an element that is calcium. It is very, very important for the growth of root tip. It is also mentioned in NCERT. In meristematic tissues, it is needed in much more amount. Why? Because when the cell are dividing in the meristematic tissue, they need to form more cell walls as well. Okay, so the middle lamella is formed up of calcium pactate, so that's why the calcium is required in a huge number in root tip tissues where the growth is occurring in the meristematic region. It simply means that they will be requiring more calcium pactate and hence they will be requiring more calcium. So it is a very direct question from NCERT itself, right? So it is gonna be the correct answer. Question number 2. In which of the following all three are macromolecules? All three are macronutrients, sorry. Okay, macronutrients. Okay, so what are macronutrients? कौन सा पीके का मग? Okay, that is the trick. So कौन सा पीके का मग? देख लो किसमें 3 आ रहे हैं इस पर्टिकुलर लाइन में से, वो आपका आंसर हो जाएगा। मॉलिब्डेनम आपका नहीं होता मैक्रो में, यह आपका आंसर नहीं है। नाइट्रोजन निकल नहीं होता, यह आपका आंसर नहीं है। बोरॉन नहीं होता, यह आपका आंसर नहीं है। आयरन नहीं होता, यह भी आपका आंसर नहीं है। यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपका ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है जिसमें तीनों के तीनों आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट हो। सो दिस क्वेश्चन गोज एज अ बोनस। दिस क्वेश्चन गोज एज अ bonus. So this is a bonus question for you guys. If you will be answering that, you will be getting the marks. Okay, all right. Question number 3. The oxygen evolved during photosynthesis. Okay, in photosynthesis the oxygen is evolved during the photolysis of water that comes from water molecule. Exactly. Which of the following pair of elements is involved in this reaction? So how does this particular reaction take place? You need to understand this. There is a mechanism called as non-cyclic photophosphorylation. What happens in non-cyclic photophosphorylation? There is PS2, there is photosystem 2 and there is photosystem 1, that is PS1. So what happens is here the light radiations will strike, okay, and the electrons will be ejected. यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर चला जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास। जहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है PS2 से, इसको सप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या रिएक्शन हो जाती है? यहां पर आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है दोस्तों ये टूट जाता है आपके प्रोटॉन्स में, ओके, इलेक्ट्रॉन्स में एंड आपका ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन आपकी इवॉल्व हो जाती है यहां पर। ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर रहता है या जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर रहती है जिससे ऑक्सीजन निकलती है, इस रिएक्शन में आपके 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स नेसेसरी होते हैं। पहला आपका क्लोरीन और दूसरा आपका मैंगनीज। So Cl and Mn are the most important elements. ढूंढ लो। मैग्नीशियम गलत हो जाएगा, मैग्नीशियम गलत हो जाएगा, मैंगनीज एंड क्लोरीन ये आपका सही हो जाएगा, पोटेशियम आपका गलत हो जाएगा। सो यू कैन एलिमिनेट ऑल ऑफ देम एंड यू विल बी गेटिंग योर करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे क्लोरीन और मैंगनीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपके फोटोलिसिस ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं और ये क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेगा बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। क्वेश्चन 4. ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, inactivation of nitrogenase by oxygen poisoning is prevented by. It means that the nitrogenase enzyme, which is the chief enzyme for nitrogen fixation, it is sensitive to oxygen. If there will be oxygen in the nearby surrounding, the nitrogenase will be inhibited. So what happens here is यहाँ पर leghaemoglobin जो होता है वो आपका ऑक्सीजन स्कैवेंजर कहलाता है। ये स्कैवेंज कर देता है आपके ऑक्सीजन को,
यानी ऑक्सीजन को क्वेंच कर देता है, इसको आपका दूर भगा देता है नाइट्रोजनेस से। और अगर ऐसा हो जाता है तो नाइट्रोजनेस आपका बेहतर तरीके से काम कर पाता है। तो ऑक्सीजन पॉइजनिंग से आपका कौन बचाता है आपके नाइट्रोजनेस को? आपका लेगहेमोग्लोबिन बचाता है, ये वाला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, चलिए। फिफ्थ, मिनरल्स नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ इंक्लूड। लार्ज अमाउंट में चाहिए, यानी किन की बात हो रही है? लार्ज अमाउंट में चाहिए मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है। यानी कौन सा पीके का मग से ढूंढना है? कौन सा पीके का मग, इससे ढूंढना है आपको अपना करेक्ट आंसर। ढूंढ लो। पोटेशियम, फास्फोरस हो जाएगा, सेलेनियम नहीं होगा, ये बात गलत है। ओके, मैग्नीशियम हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, आयरन नहीं होगा, ये बात गलत है। फास्फोरस हो जाएगा, राइट, पोटेशियम हो जाएगा, दैट्स ग्रेट। सल्फर हो जाएगा, कैल्शियम नहीं होगा, ये बात गलत है। ओके, ऑल राइट। फिर आपका कैल्शियम यहां पर नहीं प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड कॉपर होगा। ऑल राइट, ये क्या बात हुई? मिनरल्स नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, मैक्रो होगा। कौन सा पीके का मग, ठीक है। इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम इसमें नहीं आता, देन आयरन इसमें नहीं आता, देन कैल्शियम इसमें नहीं आता। ओके, कैल्शियम इसमें आता है, राइट, कैल्शियम इसमें आता है, अपॉलॉजीज फॉर दिस। कैल्शियम इसमें आता है, सल्फर इसमें आता है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज इसमें नहीं आता है। हाँ, तो ये आपका कैल्शियम आपका आता है, तो ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ऑल राइट, ओके, सो अपॉलॉजीज फॉर दिस। कैल्शियम आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, कौन सा पीके का मग में, ये आपका यहाँ पर आ रहा है। सो बेसिकली आपका सी आंसर आपको निकाल के मिल जाएगा। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन। नाइट्रोजन और पोटेशियम कैसे होते हैं मेरे दोस्त? नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आपके मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि अगर समझ लो ये लीफ है, ये डेड होने वाली है, ये सेनेसेंट लीफ है, तो इससे इसके न्यूट्रिएंट्स निकलकर कहां चले जाएंगे? आपके यंग प्लांट पार्ट में चले जाएंगे। तो यंग प्लांट पार्ट में न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट हो जाते हैं और ओल्ड प्लांट पार्ट में से ये जो है आपके निकलकर बाहर आ जाते हैं। तो ओल्ड प्लांट पार्ट में आपके डेफिशिएंसी सिम्टम पहले दिखेंगे। फर्स्ट सिम्टम आपको सेनेसेंट में ही दिखेगा, तो सेनेसेंट लीव या सेनेसेंट पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, रूट आपके एक्टिवली डिवाइड करते हैं, वहां पर आपका पहुंचेगा न्यूट्रिएंट। बड आपके अभी डेवलपिंग स्टेज में है, वहां पर न्यूट्रिएंट की ज्यादा जरूरत है, और यंग लीव्स में आपकी ज्यादा जरूरत है, तो यहां पर आपके ट्रांसलोकेट हो जाएंगे न्यूट्रिएंट्स। सेनेसेंट लीफ में क्या होगा? सेनेसेंट लीफ में आपके इन न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अमोनिया। एनसीईआरटी की लाइन है, अमोनिया ढूंढ लो, अमोनिया आपका आंसर है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? आपका जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसका अमोनिया में कन्वर्जन, इसे ही तो आप नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हो ना। तो ये आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, ढूंढो और खत्म कर दो क्वेश्चन को, दैट्स इट। 8, स्पेशलाइज्ड सेल फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन नॉस्टॉक। पहला डायग्राम आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी सेकंड चैप्टर ऑफ 11th क्लास का, इस तरीके से आपका नॉस्टॉक बनाया हुआ आपको दिखाई देगा, इस तरीके से। यहां पर काफी सारे सेल्स जो आपके वेजिटेटिव सेल हैं, और काफी सेल में आपको ऐसी थिकनिंग दिखाई देगी, विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो थिकन सेल है, इनको क्या बोला गया है? वहां पर हेटेरोसिस्ट बोला गया है। एनसीईआरटी में बाकायदा इसकी लेबलिंग है। ये हेटेरोसिस्ट आपके किस लिए होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ही होते हैं। नॉस्टॉक के अंदर जाकर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डायग्राम देखो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज के फॉर्म में पूछा हुआ है। ओके, 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोटिन। बायोटिन और इससे रिलेटेड जो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन होते हैं सच एज थियामिन, इनमें कौन सा आपको देखने को मिलता है एलिमेंट? दैट इज बेसिकली सल्फर। ओके, सो सल्फर इज द एलिमेंट जो आपको यहां पर देखने को मिलता है इन बायोटिन एंड थियामिन या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। सो सल्फर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। ओके, सल्फर आपके ऑयल से रिलेटेड जो ऑयल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनमें भी काफी ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। और ये कुछ हद तक, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स भी होते हैं आपके प्रोटीन के अंदर, तो प्रोटीन में भी थोड़े बहुत अमाउंट में आपका सल्फर पाया जाता है, राइट। सो सल्फर इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज अ ह्यूज वन, बट लेट्स सी कि स्टेटमेंट्स में कितना दम है। विच टू डिस्टिंक्ट माइक्रोबियल processes are responsible for the release of fixed nitrogen as dinitrogen gas in the atmosphere। मतलब अगर आपको फिक्स्ड नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन फिक्स हो चुके हैं, उसका आपको नाइट्रोजन की फॉर्म में क्या करना है? दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिलीज करना है। मतलब क्या हो रहा है यहां पर? आपका फिक्स्ड नाइट्रोजन आपका डाइनाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मींस इट इज डीनाइट्रिफिकेशन। आपका नाइट्राइट और नाइट्रेट क्या हो रहा है? नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहे हैं दोबारा से। तो नाइट्राइट और नाइट्रेट आपका किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? डाई नाइट्रोजन में। सो इट इज डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। ये हम लोगों को पता है फ्रॉम द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन चार्ट, जो हमने वहां पर 4 प्रोसेस देखे थे, वहां पर हमें ये आइडिया लग चुका था।
तो एरोबिक नाइट्रेट ऑक्सीडेशन, अगर नाइट्रेट की ऑक्सीडेशन हो रही है, नाइट्रेट इज इटसेल्फ NO3, अगर इस पे आप और ऑक्सीजन लगाओगे तो नाइट्रोजन कैसे बनेगा, डाइनाइट्रोजन नहीं बनेगा, ये बात आपकी गलत हो जाती है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्जन ऑफ डाइनाइट्रोजन टू अमोनियम कंपाउंड, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के डिकम्पोजिशन होना और उससे अमोनियम आयंस का बनना या फिर अमोनियम कंपाउंड्स का बनना, दैट इज अमोनिफिकेशन, वो डीनाइट्रिफिकेशन है ही नहीं। एंटेरिक फर्मेंटेशन इन कैटल एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम इन रूट नोड्यूल्स। राइजोबियम क्या करता है, आपके नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, तो उल्टा प्रोसेस है ना, यहां पे तो उल्टा काम हो रहा है, यहां पे आपका डाइनाइट्रोजन बन रहा है। एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन, अमोनियम क्या होता है आपका NH3, इसको आप ऑक्सीडाइज करोगे, यानी इसमें आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो आपका डाइनाइट्रोजन मिल सकता है। प्लस आपका डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्राइट नाइट्रेट से आपका डाइनाइट्रोजन बनता है। सो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, तो डी आपका कॉमन सेंस से ही करेक्ट आ जाएगा। अगर आपको पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है तो आप ऑटोमेटिकली इसे ठीक कर लोगे, क्योंकि आपको क्या बनाना है, N2। तो आप नाइट्रेट की और ऑक्सीडेशन करोगे तो कभी N2 नहीं बनेगा, आप नाइट्राइट की और ऑक्सीडेशन करोगे तो कभी N2 नहीं बनेगा। आपको उनकी क्या करनी पड़ेगी, या तो अमोनियम की ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी या फिर नाइट्राइट नाइट्रेट से ऑक्सीजन बाहर निकालने पड़ेंगे, उनकी आपको रिडक्शन करनी पड़ेगी। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको डाइनाइट्रोजन मिल जाएगा। सो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, राइट। चलिए, बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इन ग्रीन प्लांट पार्ट। मैंगनीज आपका कहां काम करता है, मैंगनीज आपका कहां काम कर रहा था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्लोरीन के साथ साथ। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्लोरीन के साथ साथ ये काम करता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये मैं आपको बता चुका था, दोबारा क्वेश्चन आएगा, आ गया, एक और बार आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सी बात आपकी सही कही गई है। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो एटीपी कभी नहीं लगेगी, एटीपी आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लगती है। एपोप्लास्ट आपका प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड कनेक्शन। अगर साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है दो सेल्स के तो वो सिम्प्लास्ट कहलाता है। सेल के अंदर से जो मूवमेंट हो रही है आपकी वो सिम्प्लास्ट है। एपोप्लास्ट मतलब आपकी मेम्ब्रेन के सहारे वॉल के सहारे आपकी मूवमेंट हो रही है। तो एपोप्लास्ट का प्लाज्मोडेस्माटा से कोई लेना देना नहीं है। ओके, पोटेशियम आपका रेडिली इमोबिलाइजेशन, पोटेशियम नाइट्रोजन वगैरह आपके मोबिलाइज होते हैं, ये आपके मोबिलाइज हो सकते हैं, ये मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, तो इमोबिलाइजेशन इज योर रॉन्ग टर्म। ओके, एंड बकाने ऑफ राइस सीडलिंग, यानी जो फूलिश सीडलिंग डिजीज थी वो आपका एफ स्कूग ने डिस्कवर की थी, तो ये आपका गलत बात है। एफ स्कूग ने आपका साइटोकाइनेंस की डिस्कवरी में अपना रोल अदा किया था, लेकिन बकाने डिजीज जो थी ये आपका जिबर्लिन की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो इसमें कुरोसावा नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस चीज को सबसे पहली बार नोटिस किया था। तो चारों ही स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ गलत है, तो अगर आप अटेम्प्ट करते हैं आपको बोनस मिल जाएगा। आई थिंक एपोप्लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है, काफी पास्टर क्वेश्चन पेपर्स ऐसे हैं जिनमें प्लाज्मोडेस्माटा की जगह सेल वॉल दे रखा है और बोल रखा है कि पेरीफेरी से चीजें मूव हो रही है। अगर वैसा लिखा होता है देन इट्स करेक्ट, बट जो ये बुक है इसमें आपका प्लाज्मोडेस्माटा लिखा हुआ है विच इज नॉट कनेक्टेड टू एपोप्लास्ट। एंडोडर्मिस यानी कैस्पेरियन स्ट्रिप को क्रॉस करने के बाद सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट थोड़ी देर के लिए मिक्स हो जाते हैं, वहां पर ये बात आपकी करेक्ट हो जाती है, लेकिन ओवरऑल दिस थिंग इज रॉन्ग। तो हर बात में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी जरूर है, तो इसको हम 100% करेक्ट तो किसी को नहीं मान सकते दोस्त, 100% करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से एक भी नहीं है। सो दैट्स वाई इसको हम बोनस मान के चलेंगे, राइट। चलिए, फॉर इट्स एक्शन नाइट्रोजिनेज रिक्वायर्स, यानी अपने एक्शन के लिए नाइट्रोजिनेज क्या रिक्वायर करता है, नाइट्रोजिनेज को क्या चाहिए, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, बिल्कुल चाहिए। नाइट्रोजिनेज को कोफैक्टर की जरूरत भी पड़ती है, जैसे मॉलिब्डेनम। सो मॉलिब्डेनम ढूंढ लेते हैं सबसे पहले। ओके, मॉलिब्डेनम नहीं है, तो अब हम बाकी स्टेटमेंट्स को देखेंगे। हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, आपने देखा होगा कि आप जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हो, आपके एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है जहां पर 16 एटीपी के बगल में लिखा हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान, दैट इज ऑब्वियसली ट्रू। अगर आपको एक अमोनिया का मॉलिक्यूल भी अगर बनाना है नाइट्रोजन को फिक्स करके, तो आपको 8 के आसपास जो है एटीपी लगानी पड़ती है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक such huge amount of ammonia from nitrogen because it contains it requires a lot of energy though. So high input of energy is required। आपकी एनसीईआरटी की जो इक्वेशन है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाकर लैंग्वेज की फॉर्म में पूछा हुआ है। Which of the following elements in plant is not remobilized, इनमें से कौन सा रिमोबलाइज नहीं होता, यानी कौन सा फिक्स रहता है। जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रहते हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं, जैसे कि कैल्शियम। कैल्शियम आपका कैल्शियम पेक्टेट बनाता है विच इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। सो ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ये आपके यूजुअली रिमोबलाइज नहीं होते, तो हमें पहले ही देखते ही मिल गया हमारा आंसर। ओके, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग यानी नाइट्रिफिकेशन करवाने वाले। नाइट्रिफिकेशन करवाने वाले मतलब कि आपका नाइट्रेट और आपका नाइट्राइट बनाने वाले। ओके, चार्ज आपका अकॉर्डिंग टू वैलेंसी लग जाएगा।
सो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का मतलब है नाइट्राइट और नाइट्रेट बनाने वाले। क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट, नाइट्रेट बन रहा है, ये बात आपकी करेक्ट है, लेकिन हॉल्ट पे रखते हैं, आगे देख लेते हैं। कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ओके, अभी नाइट्रोजन कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, सो इस बात की थोड़ी सी लिमिटेशन है। कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमोनिया, इसमें अमोनिया अगर बन रहा है ऑर्गेनिक आपके नाइट्रोजन से, तो ये अमोनिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन नहीं है। रिड्यूस नाइट्रेट टू फ्री नाइट्रोजन, नाइट्रेट और नाइट्राइट का नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना बेसिकली क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन। इट्स नॉट नाइट्रिफिकेशन, इट्स अपोजिट। सो क्या हुआ? पहली स्टेटमेंट आपकी रामबाण हो गई, इसमें आपका कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि गलत हो, तो ये आपका 100% करेक्ट हो जाएगी। दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द फंक्शन ऑफ लेगहेमोग्लोबिन। लेगहेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम करता है, सबको पता है, लेगहेमोग्लोबिन से यही क्वेश्चन बनता है। सो इनिबिशन ऑफ नाइट्रोजनेज एक्टिविटी बिल्कुल गलत, नाइट्रोजनेज की एक्टिविटी को तो ये बढ़ा देता है ऑक्सीजन को स्कैवेंज करके। ऑक्सीजन रिमूवल बिल्कुल सही बात है, ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी, ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। ऑक्सीजन रिमूवल करेगा तभी तो नाइट्रोजनेज अपनी एक्टिविटी बढ़िया तरीके से शो कर पाएगा। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल इन प्लांट्स। प्लांट में आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस के लिए आपका माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनती है। हम लोगों ने देखा था इन केस ऑफ पाइनस, पाइनस में एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप बनती है, यानी पाइनस की जो रूट्स हैं इसकी रिलेशनशिप हो जाएगी फंगस के साथ। जो फंगस के हाइफल कंपोनेंट है, जो उसके हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो फास्फोरस और आपके वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे पाइनस की, और बदले में पाइनस उसे क्या देगा? बदले में पाइनस उसे फूड दे देगा, बिकॉज फंगस आपका क्या होता है? सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक होता है, तो वो खुद का फूड खुद नहीं बना सकता। दिस इज एन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। पाइनस में ये कंपल्सरी रिलेशनशिप होती है और ये जीनस ग्लोमस के मेंबर्स के साथ होती है, तो ग्लोमस इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ओके, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, जीनस ग्लोमस आपका साफ साफ आपको देखने को मिल जाएगा। 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल मिनरल एलिमेंट। इनमें से कौन सा आपका एक असेंशियल मिनरल एलिमेंट नहीं है? वाइल रिमेनिंग 3 आर। असेंशियल का मतलब आपका माइक्रो मैक्रो दोनों को कंसिडरेशन में हमें लेना है। आयरन आपका माइक्रो में आ जाता है, मैंगनीज ओके आपका माइक्रो में ही आता है। फॉस्फोरस कौन सा? पीके का मग, तो ये आपका मैक्रो में आ जाता है। कैडमियम आपका माइक्रो मैक्रो कहीं नहीं आता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये असेंशियल नहीं है। ये आपके जो 9 मैक्रो थे और 8 माइक्रो थे उनमें से कहीं पे भी लाई नहीं करता, ये उन 17 एलिमेंट्स का पार्ट नहीं है, तो ये आपका नॉन असेंशियल हो जाएगा। एन एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजनेज एंजाइम में कौन सा एलिमेंट रोल प्ले करता है? मोलिब्डेनम। ढूंढ लो, मोलिब्डेनम पहला ही ऑप्शन है, मारो आगे बढ़ो, दैट्स इट। इजी क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी पढ़ी हुई 1-1 सेकंड के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, यानी आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट पहचानना है, तो कौन सा? पीके का मग, एमजी फॉर मग, सीधी बात है, मारो आगे बढ़ जाओ। देखो 2 सेकंड का क्वेश्चन था, ओके 2 सेकंड का क्वेश्चन था, ऑलराइट चलो। लेग्यूमिनस प्लांट आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सही बात है, यहां पे राइजोबियम और रूट की एसोसिएशन बन जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। अश्लील बात का, गंदी बात का पता लगाओ। लेगहेमोग्लोबिन स्कैवेंजेस ऑक्सीजन, सही बात है, एंड इज पिंकिश इन कलर, ये बात भी सही है। जब आप एक नोड्यूल का क्रॉस सेक्शन काटोगे, जब आप उसे बीच में से काट के देखोगे, आपको सेंट्रल पार्ट पिंक कलर का दिखाई देगा, दैट इज लेगहेमोग्लोबिन। नोड्यूल्स एक्ट एज साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है जब एसोसिएशन बनती है, बिल्कुल सही बात है। एंजाइम नाइट्रोजिनेज कैटलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, इसी को तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजिनेज इज इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन हो ना हो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत बात है। नाइट्रोजिनेज इज वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो आपके नाइट्रोजिनेज को काम नहीं करने देगा। डी आपका इजी है, लेगहेमोग्लोबिन में हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, आपका बिल्कुल करेक्ट बात हो जाएगी। ओके, स्टडी द साइकिल शोन बिलो एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी डी। आपका नॉर्मल एनसीईआरटी का डायग्राम है, देख के पता लग रहा है कोई भी चेंज नहीं किया है। ओके, यहां पर ए क्या होगा? ए आपका नाइट्रेट से क्या बन रहा है? डाइनाइट्रोजन बन रहा है। एक ही साइड आपका एरो लगेगा, ये वाला एरो आपका गलत है एनसीईआरटी में, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये वाला जो एरो है इसे काट दो। सो ए क्या हो गया आपका? नाइट्रेट से डाइनाइट्रोजन बनना, डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, ए आपका डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, ढूंढ लो, ए आपका डीनाइट्रिफिकेशन है, यानी बी और डी में से करेक्ट आंसर आपको निकालना है, बी और डी में से करेक्ट आंसर निकालना है। देन अपटेक हो गया आपका इस नाइट्रेट का सी में। सबसे पहले अपटेक कौन करता है? प्लांट करते हैं, फिर प्लांट को एनिमल खाता है, फिर एनिमल में जाती हैं चीजें। सो सी प्लांट है, डी आपका एनिमल है, सी प्लांट है, डी आपका एनिमल है, सी प्लांट है, डी आपका एनिमल है, दोनों में ही ठीक है, बी डी दोनों ही अभी टक्कर पे चल रहे हैं। ये डिकेइंग बायोमास है, यानी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, इससे आपका अमोनिया का बनना, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपका अमोनिया का बनना, बी क्या हो जाएगा? अमोनिफिकेशन हो जाएगा, अमोनिफिकेशन मार्क कर दो,
बी क्या है, अमोनिफिकेशन, बी आपका अमोनिफिकेशन है। ओके, तो बी में करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये आपका 100% करेक्ट है। डी देख लो, नाइट्रिफिकेशन बोला हुआ है, गलत बात, ये आपका नाइट्रिफिकेशन नहीं है। ओके, सो क्या हुआ, आपका बी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। चारों चीजें इसमें बिल्कुल बराबर मैच होती हैं। मैंगनीज इज रिक्वायर्ड इन, मैंगनीज कहां रिक्वायर्ड होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सही बात है। मैंगनीज और क्लोरीन आपका वहां पर यूटिलाइज हो रहा था ना, सेम क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो, मतलब फ्री का क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट भी याद कर ली, इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है। ओके, हो सकता है क्लोरीन के नाम पे पूछ ले, हो सकता है मैंगनीज के नाम पे पूछ ले, मैंगनीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एन असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा एक असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, यानी मैक्रो हो सकता है। ओके, तो जिंक ये आपका नहीं है मैक्रो, कॉपर नहीं है आपका मैक्रो, कैल्शियम कौन सा पीके का, ये हो जाएगा आपका Mn आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो आपका का यानी कैल्शियम इज द ओनली मैक्रोन्यूट्रिएंट ओवर हियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। द प्लांट रिक्वायर मैग्नीशियम फॉर, मैग्नीशियम कहां कहां प्रेजेंट होता है, कहां कहां रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के अंदर, स्पेसिफिकली ये बात की गई है। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में आपके राइबोसोमल यूनिट्स की जब असेंबली होती है तो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में आपको मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है, दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट क्लोरोफिल सिंथेसिस में आपके मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए रहती है, बिकॉज क्लोरोफिल में आपका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक एलिमेंट है जो कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। अपने बीच में क्या प्रेजेंट होगा, बीच में मैग्नीशियम प्रेजेंट रहेगा, फिर नाइट्रोजन होंगे, और तब जाके आपका हेड और टेल बनेगा, आपका फाइटॉल टेल बनेगा, आपका मेगा हेड बनेगा, वो सारा आपका मैग्नीशियम की प्रेजेंस में ही होता है। तो ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी, क्लोरोफिल सिंथेसिस आपकी बात करेक्ट हो जाएगी, राइट। चलिए 26, सल्फर इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन, सल्फर किन चीज में जरूरी होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि बायोटिन और थियामीन यानी कि आपके बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में बहुत ज्यादा ये पाए जाते हैं। कुछ आपकी पल्सेस जो कि प्रोटीनेशियस होती हैं, जिनमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है, इनमें भी सल्फर पाया जाता है, लेकिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड की क्वांटिटी ओवरऑल बचे हुए 18 अमीनो एसिड के कंपैरिजन में उतनी ज्यादा नहीं होती, तो माइन्यूट क्वांटिटी इनकी होती है। लेकिन ऑयल सीड क्रॉप की जर्मिनेशन के लिए, ऑयल सीड क्रॉप्स जो होते हैं इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है आपकी सल्फर की। ओके, काफी सारे ऐसे तेल बनाने वाले जो ऑयल सीड क्रॉप होती हैं, जैसे कि आपके मस्टर्ड वगैरह, उनमें जो कच्ची घानी की जो स्मेल आती है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सल्फर, उनका जो ओडर आता है, जो पंजेंट स्मेल आती है, वो भी आपकी सल्फर की वजह से ही आती है। सो मोस्टली वहां पर आपका सल्फर कंटेंट ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ पल्स क्रॉप। सो इसीलिए आपके ऑयल सीड क्रॉप यहां पर आंसर हो जाएगा, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, वो पंजेंट स्मेल आपको याद रहेगी क्योंकि सरसों का तेल आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, राइट। सो कच्ची घानी विल बी अ रेलेवेंट एग्जांपल। द डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट कम है, नॉट ओनली अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट बट आल्सो वाइटल फंक्शन सच एज फोटोसिंथेसिस एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी आपका जो फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये आपका अफेक्ट हो जाता है अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है तो। अमंग द लिस्ट गिवन बिलो विच ऑफ द 3 एलिमेंट्स शैल अफेक्ट द मोस्ट बोथ फोटोसिंथेटिक एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यानी अगर ये 3 चीजें गायब हो जाएं तो आपका सबसे ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रियल और आपका फोटोसिंथेसिस के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पे। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस देखते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रहता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को सप्लीमेंट कौन करता है, आपका वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो जाता है और क्या बन जाता है, आपका प्रोटॉन बन जाएंगे, यहां से 2 प्रोटॉन बन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और आपका नेसेंट ऑक्सीजन बन जाएगा जो कि इवॉल्व हो जाएगा। सो यहां पर जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपका मैंगनीज इंपॉर्टेंट है, आपका क्लोरीन इंपॉर्टेंट है, राइट। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ये आपके जरूरी हो जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इसमें आपके साइटोक्रोम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें आयरन आपका इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक का, तो आयरन सल्फर प्रोटीन जो है आपके बहुत बार बीच बीच में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो इनमें से देखते हैं आपका आंसर निकलता है कि नहीं। आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन एसेंशियल हो जाएगा, यहां पे कोबाल्ट निकल मोलिब्डेनम में से कुछ भी नहीं होगा, यहां पे सोडियम कैल्शियम में से कुछ भी नहीं होगा, मैंगनीज आपका इंपॉर्टेंट है, ओके, लेकिन आपका कोबाल्ट कैल्शियम कुछ नहीं है। कॉपर आपका यहां पर हो जाएगा, ओके, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको पता लगेगा कि जो साइटोक्रोम AA3 है, इसमें क्या होते हैं, इसमें 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं, 2 कॉपर सेंटर्स आर प्रेजेंट, ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो कॉपर सेंटर्स यहां पर प्रेजेंट होंगे तो कॉपर हो जाएगा। मैंगनीज आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर और आयरन सल्फर प्रोटीन आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का काम करते हैं। साइटोक्रोम्स के अंदर भी इनके इंपॉर्टेंट
रोल होती है, इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। तो 27 का डी आपका आंसर हो जाएगा। 28, इफ बाय रेडिएशन ऑल नाइट्रोजनेज एंजाइम्स आर इनएक्टिवेटेड, अगर रेडिएशन आपने डाली, सारे नाइट्रोजनेज एंजाइम को आपने इनएक्टिवेट कर दिया, तो क्या चीज नहीं होगी? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगी। फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में जितनी भी नाइट्रोजन है वो कभी फिक्स नहीं हो पाएगी। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट इन लेग्यूम्स, नाइट्रेट टू नाइट्राइट, इसका वैसे भी नाइट्रोजन से कोई लेना देना खास नहीं है। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट, इसका भी कोई खास लेना देना नहीं है। तो ये दोनों तो आपकी ऑटोमेटिकली गलत हो गई, क्योंकि इनमें आपके डाई नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन नहीं हो रहा, तो इनकी बात अभी नहीं करते। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम, आपके लेग्यूम में स्पेसिफिकली आपका नाइट्रोजनेज जो है वो कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, leghaemoglobin की मदद से ऑक्सीजन को स्कैवेंज किया जाता है, जिससे नाइट्रोजनेज काम कर पाए। अगर नाइट्रोजनेज एंजाइम को आपने इनहिबिट कर दिया है तो लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नॉन लेग्यूमिनस होके भी आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं, उनमें तो होगी ना। तो दुनिया की सारी जो नाइट्रोजन है वो फिक्स नहीं हो पाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजनेज एंजाइम, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, कुछ हद तक ये बात आपकी गलत है। तो जो लेग्यूम वाले होंगे ये नहीं हो पाएंगे फॉर श्योर, ये बात आपकी करेक्ट है। सो जो लेग्यूम वाले हैं ये नहीं हो पाएंगे, ये आपका आंसर है, लेकिन कभी भी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा ही नहीं, ये बात आपकी थोड़ी सी मिसलीडिंग हो जाती है, बिकॉज वी हैव वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से एक्ट करता है। ग्रे स्पॉट ऑफ ओट आर कॉज्ड बाय, इसको मैंने याद किया था जीएमएन से। जीएमएन एक कॉलेज है अम्बाला में, जिसमें एक बार मैं गया था। ओके, हमारे रिलेटिव हैं, वो प्रिंसिपल है जीएमएन कॉलेज अम्बाला के। सो जीएमएन से मैंने याद किया था, जो ग्रे स्पॉट है इसमें एमएन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज योर मैंगनीज। ओके, सो ग्रे स्पॉट ऑफ ओट जो है इसमें आपका मैंगनीज इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि ओट के बारे में आपको बहुत ज्यादा बताया नहीं हुआ, अगर डिटेल में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे देन वी विल श्योरली बी डिस्कसिंग अबाउट दैट, बट फिलहाल आपको सिर्फ यह याद करना है कि ग्रे स्पॉट ऑफ ओट आपका मैंगनीज की डेफिशिएंसी से हो जाता है, यहाँ पर क्लोरोसिस हो जाता है। ओके, ग्रे कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं आपके ओट पे, काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि उसकी ग्रोथ को कम कर देती हैं। क्वेश्चन 30, बोरॉन इन ग्रीन प्लांट्स असिस्ट इन, बोरॉन जब आप पढ़ते हो इसके बारे में आपके इस चैप्टर के अंदर, तो बोरॉन में दो चीजें मैंने आपको बताई थी, दो चीजें हमेशा याद रख लेना कि पॉलन जर्मिनेशन आपका बिल्कुल एक पेक्यूलियर फीचर है। पॉलन जर्मिनेशन जो आपका कौन करवाता है? पॉलन जर्मिनेशन आपका बोरॉन करवाता है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर था जो कहीं आपको किसी और एलिमेंट में देखने को नहीं मिला। दूसरा था शुगर ट्रांसलोकेशन, शुगर ट्रांसलोकेशन ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, जो सिर्फ आपका बोरॉन ही करवाता है। ओके, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो शुगर ट्रांसपोर्ट आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, बिकॉज आपका पॉलन जर्मिनेशन यहां पर नहीं दे रहा है, लेकिन पॉलन जर्मिनेशन बोल के आपसे पूछ जरूर सकता है, दैट इज अ श्योरिटी। अगर क्वेश्चन आएगा अगली बार पॉलन जर्मिनेशन बोल के पूछेगा, फिलहाल के लिए डी मार्क कीजिए, आगे बढ़िए। सो गाइज, दीज आर द लास्ट 15 years क्वेश्चन पेपर ऑफ योर मिनरल न्यूट्रिशन एंड आई होप दैट यू गॉट देम वेरी वेल। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी आर वेरी क्लोज टू 100K एंड आई होप आज 100K हमारे हो जाएंगे एंड आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल। सो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को इफ पॉसिबल, बिकॉज सारी की सारी डीपीपी अब दिन की 2 से 3 डीपीपी में अपलोड करने वाला हूं, जिससे कि आपको मैं अराउंड 5 से 7 दिन का बफर टाइम भी दूं अपने नीट 2020 से पहले पढ़ने का। ओके, तो हम लोग जो है दिन की 2 से 3 डीपीपी करेंगे। आज मैं आपका मिनरल न्यूट्रिशन करा दूंगा, आज इसके साथ साथ मैं आपका फोटोसिंथेसिस करा दूंगा, मैं आपका रेस्पिरेशन करा दूंगा, और मैं साथ साथ अपने बायोटेक की जो डीपीपीज हैं ये बना के रख लूंगा, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की बना के रख लूंगा, जिससे हम 12th भी स्टार्ट कर पाएँ। सो आपको 2 दिन में ये 5 डीपीपी देखने को मिल जाएंगी, दैट इज अ श्योरिटी। और आने वाले टाइम में हम इनकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ा देंगे। शक्तिमान सीरीज भी चल रही है, तो आपकी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, केमिस्ट्री में भी मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस लेकर आऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। सो प्लीज मेक श्योर आप बने रहें, और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है देन दैट्स वेरी गुड। आपको एमबीबीएस में भी बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथो, इम्यूनो, काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, काफी सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ाने वाला हूं। और अगर आप बीएससी करते हैं या फिर अगर आप रिसर्च फील्ड में जाते हैं तो हमारा आपके एमएससी पीएचडी तक का साथ है, तो आपको चैनल छोड़ने की या अनसब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब तक पढ़ोगे, जब तक आप बायोलॉजी की फील्ड में हो, तब तक हमारा साथ बना रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।